آپ لوگوں نے بڑی سمجھداری کا کام کیا کہ لوگوں کے ساتھ ہم آواز ہو گئے اور بیعت کا ارادہ کر لیا۔ لوگ فرقہ واریت سے تھک گئے ہیں۔ میرے خیال سے توابین بھی غلطی پر ہیں۔ یہ لوگ کڑے مردے اکھاڑ رہے ہیں، مردہ بھی عذاب میں اور زندہ بھی عذاب میں۔ بہرحال میں کوفے والوں کے قابل اعتماد اور خدمت گزار ہونے کے ناطے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تمام مسلمان بھائی چارگی اختیار کریں۔ یہی بات خلیفہ کے حکم میں ہمیں ملتی ہے۔ خلیفہ چاہتے ہیں کہ مسلمان آپس میں رحم دلی اور نرمی کا گوشہ رکھیں، پرانے زخموں پہ لڑنا بند کریں اور تمام بغض اور کینوں کو بلا ڈالیں۔ کیا توابین خلیفہ کی بیعت نہیں کرنا چاہتے؟ کیا کہوں، موضوع کو پیچیدہ بنا رکھا ہے انہوں نے، ذو معنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ خدا بھی مل جائے اور وصل جانا بھی، نہ آل زبیر کا ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا امیر، یا اس طرف ہو جائیں یا اس طرف ہو جائیں۔ جناب خلیفہ کا کیا ارادہ ہے؟ آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کروں کہ خلیفہ کی بات ایک دلسوز باپ کی سی ہے۔ امید ہے کہ یہ فرزند خطا کار غلط راستے سے لوٹ آئے اور سیدھے راستے پر چلنے لگے اور باپ کے غم و غصے کا باعث نہ بنے۔ اگر یہ نافرمان بیٹا سیدھے راستے پہ نہ آئے تو کیا؟ باپ کے صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ پھر نبی خدا حضرت نوح اور ان کے بیٹے کی حکایت ہو جائے گی۔ جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا تو باپ نجات پا جائے گا اور بیٹا ہلاک ہو جائے گا۔ مجھے امیر کی باتوں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو بھی آل زبیر کی بیعت کرے گا گویا وہ ان کی کشتی میں سوار ہو گیا ہے، وہ طوفانوں اور توابین کی چوٹ سے امان میں رہے گا۔ ٹھیک کہا نا میں نے امیر؟ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے شمر، مگر مجھے تم لوگوں سے اور زیادہ توقع تھی۔ اگر توابین کے خوف سے آپ لوگ آل زبیر کی بیعت کر رہے ہیں تو بہتر ہے بیعت نہ کریں اور دیر ہونے سے پہلے اپنی جان بچائیں اور فرار ہو جائیں شام کی طرف۔ وہ بیعت جو کسی طرح کے ڈر، خوف یا بے دلی کے ساتھ ہو وہ کسی قدر و قیمت کی نہیں ہوتی۔ لیکن اگر آپ لوگ آل زبیر پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر بیعت کیجئے تاکہ آپ کو پناہ مل جائے۔ میں اپنی بیعت کی اپنے خون سے ضمانت دیتا ہوں، خدا کرے کہ یہ بکواس نہ ہو۔ اس بیعت کے ذریعے آل امیہ سے اظہار بیزاری کرتا ہوں اور آل زبیر سے دوستی کا مشتاق ہوں۔ اے تباب بھائیوں، واقع کربلا کے بعد سرغنہ مسببین نے ابن زبیر کے والی کوفہ سے بیعت کر لی ہے۔ والی کوفہ نے اپنی طرف سے یہ کام نہیں کیا ہوگا، یقیناً وہ اپنے خلیفہ کی طرف سے اس غلط بیعت پر مامور کیا گیا تھا۔ شمر لعین اور عمر سعد خبیث کی بیعت قبول کرنے کا مطلب ہے کہ آل زبیر نے اپنے پچھلے دعوے سب واپس لے لیے، یعنی توابین سے کھلم کھلا دشمنی کرنا جو حسین کے خون کا انتقام لینے والے ہیں۔ اگر یہی تماشے رہے کہ ہر چند عرصے میں کوئی طاقت کا بھوکا، منحرف اور لالچی شخص کھڑا ہو کر
دین کے نام پر بدترین اور سب سے گری ہوئی حرکتوں کا مرتکب ہو جائے اور جہاں تک ہو سکتا ہے مسلمانوں کے مال و ناموس کو لوٹتا رہے، اور ایک مسلمان حکمران ان سب باتوں کو نظر انداز کر کے اسے پناہ دے دے تو ایسے تو کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ ابن زیاد جو مشہور ہے بنام ابن مرجانہ، اشقیاء میں شقی ترین شخص، اولیاء اور اوصیاء اور 72 شہدائے کربلا کا خونی دشمن اور قاتل، جو جھوٹ اور ریاکاری کا، خدا کی نافرمانی اور حرام کاریوں کا اہل ہے، اس کا اور اس کے ساتھیوں کا نجس وجود دار پہ لٹکایا جائے گا۔ یہ کون سی مسخرہ آمیز محفل ہے؟ یہ کون سی فضول باتیں پڑھ کر سنا رہے ہو؟ میں تھک گیا ہوں، جلدی سے اس تماشے کو ختم کرو مختار۔ میں کہتا ہوں یہ تماشا بند کرو۔ کیف انتقام تو تب ہے جب تم اپنی تلوار کو خون سے غسل دو گے۔ اپنی بکواس کو ہماری جان کا زہر مت بناؤ۔ تم خود اچھی طرح جانتے ہو کہ میں خون اور خون ریزی کا عاشق ہوں، چاہے مروں یا مر جاؤں۔ مختار جان، مجھے وہ روٹی کھلا کے مارنا جو ملک رے کی گندم سے پکی ہو، یا چاہے اس کے کچھ بھوسی ٹکڑے ہی مجھے دے دو کہ وہ کھا لوں۔ اے مختار، مجھے غور سے دیکھو، میں وہ شقی ہوں جس نے اس نیک سپہ سالار کا خون اپنے ان ہاتھوں سے بہایا جس کا کوئی یاور نہ تھا۔ مجھے کھولتے ہوئے پانی کی دیگ میں پھینک دو۔ الوداع ہے خانہ کعبہ، الوداع ہے آنسوؤں کے قبلہ گاہ، الوداع ہے علی کی جائے پیدائش، شاید یہ ہمارا آخری دیدار ہو۔ خانہ کعبہ کا طواف قبول ہو مختار۔ آپ کا طواف بھی قبول ہو بھائی۔ ارکان پورے نہیں کرو گے؟ کوفہ سے حانی ابن جبہ وداعی صاحب، کیا حال ہے ابن جبہ؟ آپ کی دعاؤں سے ابو اسحاق، آپ کیسے ہیں؟ سانس چل رہی ہے، ہزار شکر ہے اس کا۔ جتنی دیر تم طواف میں تھے میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تمہارا طواف تو طواف وداع تھا، کہاں کا ارادہ ہے انشاءاللہ؟ انسان کی موت ہر وقت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے حانی، شاید ابھی صحن کعبہ سے باہر قدم رکھیں اور تو پھر بہتر ہے کہ انسان ہر وقت جانے کے لیے تیار رہے۔ کب تک مکہ میں بیٹھے رہنے کا ارادہ ہے مختار؟ بالکل کوفے کو بھول ہی گئے ہو تم؟ اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتے؟ خانہ کعبہ کے جوار میں رہنے کی توفیق ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ کوفے کی کیا خبریں ہیں ابن جبہ؟ کوفہ تو مت کہو جیسے کوئی طوفانی دریا ہے، صرف مختار کی کمی ہے۔ یزید کی موت کے بعد اب کوفیوں کو غیرت آ ہی گئی اور اموی کارندوں کو ذلیل اور رسوا کر کے کوفے سے باہر نکال دیا۔ لوگوں کی آل زبیر سے بیعت صرف مصلحت کے تحت ہے، ان لوگوں نے مجبوراً آل زبیر سے رضامندی کا اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے اندھوں میں کانا راجا ہوتا ہے۔ اگر تم کوفے میں ہوتے تو کم از کم لوگ عامر ابن مسعود کی طرف نہ جاتے۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے مختار، کوفیوں کو آل زبیر پر شک ہے۔
जनाब सुलेमान सुर तो थे नहानी, तो फिर उनकी बैत क्यों नहीं की तुम लोगों ने? सच तो यह है कि बहुत से लोग सुलेमान के गिर्द हैं, मगर सुलेमान बजाते खुद हुकूमत नहीं करना चाहता। हमने जितनी भी जिद की उसने कबूल नहीं किया। रात दिन गिरिया करता रहता है। सुलेमान और उसके साथी तवाबैन के नाम से मशहूर हो गए हैं। उनका अकीदा यह है कि उनकी तौबा उस वक्त कबूल होगी जब ये शहीद होंगे। कूफियों की राय मुख्तार के बारे में क्या है हानी? किस हवाले से? हर हवाले से। जानना चाहता हूँ कि मेरे बारे में क्या कहते हैं। अच्छी अच्छी बातें करते हैं। हमने तो जो कुछ सुना है वो जंग मक्का में मुख्तार की शुजाअत और उसकी हरम काबा के दिफा में जानिसारी का ही सुना है। लोगों की आले जुबैर की तरफ जाने की एक बहाना तराश दलील तुम खुद हो। मैं? और क्या, कूफियों का तुम्हारी तशखीस पर ईमान है। लोग कहते हैं अगर आले जुबैर अच्छे लोग न होते तो मुख्तार उनके पास न रुके रहता। वाकईन? तुम अपने आप को इतना कम कीमत क्यों समझते हो अबू इसहाक? कूफे वाले तुम्हें अपना हिस्सा समझते हैं। तुम्हारा बैतुल्लाह का दिफा करना इन लोगों के गुरूर का बाइस बन गया है। तुम पर नाज करने लगे हैं ये लोग। तवाबैन का क्या? क्या उनकी भी यही राय है? तवाबैन को ना मुख्तार से सरोकार है और ना आले जुबैर से। उनका सारा गम शहादत पाना है। मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। मुख्तार, हाँ। तुम्हारे ख्याल से ये आले जुबैर कैसे लोग हैं? किस हवाले से? दीन, शरीयत, तरीकत और सलाहियत के हवाले से। क्या वाकई में दीन का दर्द है भी या सिर्फ रियासत के भूखे हैं? फकत खुदा ही अंदर के राज से वाकिफ है, हमें क्या पता। मेरे और हज़रत खलीफा के लिए खाने पीने और सोने से ज़्यादा मुक़द्दम ये है कि शरीयत का पास रखें। जनाब खलीफा चाहते हैं कि उनके भाई की बेवा हुक्म शरीयत के मुताबिक शादी कर लें, गैरों और अजनबियों से नहीं। वो चाहते हैं कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ ज़ुबैर की बहू बनकर रहूँ। हुक्म सर आँखों पर। मगर मुंजल की मौत के बाद मैंने वो मन्नत मानी है जिससे मेरा निकाह मशरूत हो चुका है। कैसी शर्त है बानू? शर्त क़िसास। क़िसास? किससे? कातिल मुंजल से। मुंजर का कातिल एक बदनसीब और बेतुका सा शामी आदमी था जिसे मुंजर ने खुद वासिल जहन्नुम कर दिया। मुंजर का कातिल वो अलमदार है जिसने मुंजल को मैदान में जाने की इजाज़त दी। मुख्तार? जी हाँ, मुख्तार। जब तक मुख्तार जिंदा है ज़ुबैर के तमाम बेटों के सर खतरे की ज़द में हैं। मुख्तार का मारा जाना हमारी हुकूमत के लिए बुरा कदम है खाशिया। तो उसे इस तरह भी मारा जा सकता है कि उसका खून हुकूमत बनी ज़ुबैर के सर ना आए। तुम बज़िद हो कि मुख्तार मारा जाए? मैंने मन्नत मानी है जाफर, अहद किया है खुद से। मन्नत का अदा करना वाजिब है। मेरा फैसला खून मुख्तार है। परवरदिगारा तुझी से दिल इत्मीनान का बाइस है। इब्न ज़ुबैर अब इब्न नुमैर के साथ साजिश करने के बाद बनी हाशिम की तरफ रुख करेगा। हमारे मौला इमाम सज्जाद के साथ जलावतनी कर लीजिए। हिजाज से निकल जाइए। चले जाएं? कहाँ चले जाएं मुख्तार?
खाके मक्का और मदीना का जर्रा जर्रा आले हाशिम के लिए खत्मी मर्तबत की हयात मुबारका की जिंदा निशानियों से भरपूर है। कूफा भी आप लोगों के लिए तल्ख और शीरीं वाक़यात से भरपूर है। कूफा नहीं, दोज़ख कहो, जिन पे लानत की गई है। उन लोगों की सरजमीन है वो, मुसीबत और बला ही है। क्या सोचकर हमें कूफे की दावत दे रहे हो मुख्तार? क्या कूफा अभी तक औलाद अली के खून से सैर नहीं हुआ? आपको हक है कि इराक और कूफे का नाम सुनकर गुस्से में आए मेरे आका। कूफा ने आले अली के हक में कोई कमजोर जफा नहीं की है। जिस दिन कूफियों ने मेरे आका सैयद शुहदा मौला हुसैन को बुलावा भेजने पर इसरार किया, मैंने सबसे पहले मुखालफत की थी, क्योंकि मुझे पता था कि कूफी अभी तक कितने बड़े नहीं हुए कि अली और औलाद अली की कदर कर सकें। मगर क्या करूं, मैं सुलेमान सुर्द खुजाई जैसों को समझा न पाया, और वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मगर आज हालात बदल गए हैं। खून हुसैन की बरकतों में से एक ये था कि कूफियों को शऊर आ गया और 31 साल ख्वाब गफलत से बेदार हो गए। मुख्तार, आले अली ने काफी हद तक कूफियों की हरकतों का खमियाजा उठाया है। कूफियों का कोई कर्ज नहीं हम पर। कूफा हमारे लिए एक नफरत ज़दा नाम है। तो फिर खामखा जिद मत करो। हम आले जुबैर की तकलीफों पर ज्यादा राजी हैं बनिस्बत कूफे जाने के। हम इस पर राजी हैं। शाम शाम कोई हुक्म है मेरे आका? मदद करो, मुझे उठाओ। जी अच्छा, ये लीजिए। ये कैसी मोहब्बत है जो हमें दोबारा किसी करबला की तरफ ले जा रहे हो? एक मौका दीजिए ताकि मैं कूफा की पेशानी से बदनामी का दाग मिटा सकूं। तुम्हारा क्या इरादा है मुख्तार? क्या करना चाहते हो? मैं कयाम का परचम लहराना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि अपने शहीद इमाम के कातिलों से क़िसास लूं। मुझसे क्या चाहते हो? सिर्फ इजाजत, हुक्म चाहता हूं। हुक्म तो वही वादे खुदावंदी है कि हम मुजरिमों से इंतकाम लेकर रहेंगे। मतलब रजामंदी। इस आयत का मतलब है इंतकाम की रजामंदी, यानी कयाम की रजामंदी।
तरह तरह के मुख्तार बता रहे हैं कि मुख्तार काफी अरसे से भागने के चक्कर में था। सियासत इसे कहते हैं। हाँ, आले जुबैर के तमाम सियासतदान मिलकर भी मुख्तार की छोटी उंगली के टक्कर के भी नहीं हैं। हाँ, आप लोगों में से कोई भी ये क्यों ना समझा कि मुख्तार की सोचे समझे हुए इनकार के पीछे एक बड़ा फितना पोशीदा है। ताइफ, क्या पता वो ताइफ में हो? ये बहुत मुश्किल है जाफर, मुझे नहीं लगता। बहरहाल तुम ताइफ जाओ। अगर वो ताइफ में भी ना हो तो उसकी मां को कैद कर लो। शायद उसकी मां की मदद से उसके चालाक बेटे को शिकार कर सके। बोलो, ताइफ में भी नहीं था, हवा बनकर उड़ गया है। हाँ, ताइफ में भी नहीं था। नहीं, जाहिरन मुख्तार काफी पहले से भागने के चक्कर में था। 1 महीना पहले उसकी मां दुम्मत ताइफ से हिजरत कर गई। उनके घर और बाग में कोई भी नहीं था सिवाय बागबान के। बिन साहल, बगैर किसी लिहाज के ये कहूंगा कि तुमने सरासर बकवास की थी। हुकूमत आले जुबैर का ज़हीन तरीन दिमाग ये कहता था कि जब तक सुलेमान सुर्दे खुजाई शियों का पेशवा कूफे में है, मुख्तार हरगिज कूफा नहीं जाएगा। अपने इस कचरा तरीन नजरिए के तहत उन्होंने हमें मुख्तार की तरफ से बेफिक्र कर दिया और कहा कि उसको खुदा के हवाले कर दें। जसारत है। अपना मुंह बंद रखो। बिन साहल, तुम्हारी यह हरकत इतनी आसानी से भुलाई न जाएगी। मैं क्या करूं? अपने किए हुए का पछतावा है मुझे। बेहतर यही है कि आज के बाद मैं चंद मुफ्तखोरों के पुरफैज मशवरों से मुस्तफीद न हुआ करूं। जब ये हुकूमत एक छोटे से बागी से निमट नहीं सकती जो उनके हाथ में था, तो आले उमैया के दावेदारों के बराबर कैसे खड़ी हो सकती है, जो कि एक तवील उम्र चालाकियों पर पलते चले आए हैं। बिन यजीद। जी हजरत खलीफा। तुम और इब्राहिम इब्न मोहम्मद इब्न तलतुल खैर जितनी जल्दी हो सके कूफे की तरफ निकल जाओ। मनसबों को आपस में बांट लोगे तुम में से एक,
इमाम जुमा बन जाए और दूसरा अमीर बन जाए। कुछ ऐसा करो कि मुख्तार कूफे में हाथ पांव फैला सके। जिस तरह भी हो सके उसके खतरे को दफा कर दो। तवाबीन ने आज तक आले जुबैर से खुलकर बात नहीं की, क्योंकि इस गुरोह की आले अली से दोस्ती में हमें शक था। अब तक उम्मे जंग जमल को हम भुला नहीं पाए हैं। जंग जमल में यही जुबैरी खलीफा जंग को भड़काने वालों में से था। जब मैंने ये सुना कि खून हुसैन का इंतकाम लेना चाहता है तो मैं शक में पड़ गया कि यकीन करूं या ना करूं। ठीक है, इंसान लग़्ज़िश और खता का पुतला है, तौबा का दरवाजा भी खुला हुआ है। मुझे लगता था कि आले जुबैर को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और गलती की तलाफी की फिक्र में है। मुझे ये मानने में तशवीश थी कि आले जुबैर अपने कहे हुए पर सच्चे साबित होंगे, क्योंकि ये लोग इख्तिदार के भूखे थे और आज भी इख्तिदार के भूखे हैं। उन लोगों ने देखा कि खून आले रसूल ने मुसलमानों के दिलों को मजरू कर दिया है, तो इंतकाम के नारे लगाने लगे ताकि मुसलमानों की हिमायत हासिल कर सकें। आमिर का कूफे के उमवियों के साथ जो खेल है वो इब्ने जुबैर के उस खेल से मुशाबा है जो उसने यजीद के मरने के बाद मक्के में खेला। यजीद के मरते ही शामियों ने सुलह का झंडा लहरा दिया। जुबैरी खलीफा वसवसे में आ गया, ढीला और सुस्त हो गया। इतनी देर की और उज़्र बहाने शुरू कर दिए कि जंग में टाल मटोल होता रहा, यहाँ तक कि शाम क्या खबर है कियान? भाग गया। अबू इसहाक मक्के से फरार हो गया, वो कूफा की राह में है। इसका मतलब फिर से मुख्तार के दुश्मन हमेशा की तरह खुमार में धुत रह गए। मुख्तार का आले जुबैर की गिरफ्त से फरार करना तमाम बुरे गैरों और अपनों के मुंह बंद कर देगा। बेहतरीन खबर है कियान। अब क्या करना चाहिए बिन कामी? तूफान उठा देंगे कियान, क़यामत बर्पा कर देंगे। ये खबर तमाम साथियों और दोस्तों तक पहुंचा देंगे। मुख्तार जिसके सर खाना काबा के दिफा का सेरा है, उसे जलाल और जबरूत के साथ कूफे में आना चाहिए था। आओ कियान।